دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین کرام، شہید ارشد شریف قتل کیس جو ہے وہ جناب اس کے حوالے سے میں روزانہ کی بنیادوں پر آپ کے ساتھ خبریں شیئر کر رہا ہوں، اور یہ کیس میں انشاءاللہ تعالیٰ بھولنے نہیں دوں گا جب تک اس کیس کے جو قاتل ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو بہیمانہ طور پر قتل کر دیا، جب تک وہ الٹا نہیں لٹک جاتے، ان کو سزا نہیں سنائی دی جاتی، میں اس کیس کو انشاءاللہ بھولنے نہیں دوں گا۔ تو ارشد شریف قتل کیس جو ہے اس حوالے سے سلمان اقبال نے آج DGISI کی پریس کانفرنس کی دھجیاں اڑا کے رکھتی ہیں اور قاتلوں کا نام بتانے کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس سب کے بعد اب بڑے بڑے برج جو ہیں وہ لٹنے جا رہے ہیں، قاتل پوری قوم کے سامنے آنے جا رہے ہیں جس نے اس وقت طبلِ جنگ بجا کے رکھ دیا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے DGISI اور DGISPR صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس میں تانے بانے جو ہیں وہ سلمان اقبال اور عمران خان کے ساتھ جوڑے جا رہے تھے، اور اس سب کے بعد اب سلمان اقبال کا ایسا خط منظر عام پر آ چکا ہے جس نے جناب اس وقت تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے۔ اس خط میں کس کس کا نام بتانے کے لیے سلمان اقبال نے اس وقت پوری طرح سے طبلِ جنگ جو بجایا ہوا ہے، وہ قاتل کون نکلے ہیں، اس پہ کس کس کے نام ہیں، یہ تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، آپ نے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا۔ اور دوسری خبر پر جو آج ہم نے بات کرنی ہے، کل آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ پہ خبر دی تھی کہ عمران خان کا جس دن یہ لانگ مارچ ہے، یعنی کہ کل پہلا دن تھا لانگ مارچ کا، تو جناب بیک ڈور پر عمران خان کو طاقتور حلقوں نے ایک پیغام دیا تھا کہ آپ اسلام آباد نہ آئیں، ہم الیکشن کا اعلان کروا دیتے ہیں، لیکن عمران خان نے ہر طرح سے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ تو عمران خان کے اب لانگ مارچ نے لرزہ طاری کر کے رکھ دیا ہے، اور پنڈی میں اس وقت زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں۔ تو امپورٹڈ حکومت اور جنرل باجوہ نے سرنڈر کر دیا ہے باقاعدہ طور پر، اور اب جو خبر سامنے آ رہی ہے، ٹاپ بریکنگ نیوز ہے، اس پر میں نے خصوصی طور پر بات کرنی ہے کہ جنرل باجوہ مستعفی ہونے جا رہے ہیں کیا؟ یہ بڑا سوال ہے، اور اس حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے کہ نئے آرمی چیف کو فوری طور پر تعینات کر دیا جائے۔ اب یہ نئے آرمی چیف کون ہے، یہ فوری طور پر تعیناتی کون کر رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، GHQ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، یہ تمام تفصیلات بما حقائق اور بما ثبوت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور تیسری خبر پر بات کرنی ہے کہ ارشد شریف کے قتل کے بعد عمران خان کو بڑا اہم پیغام دے دیا گیا ہے۔ عمران خان کو قتل کرنے کی جو سازش ہو رہی تھی وہ اب آخری مراحل میں ہے۔ کیا عمران خان کو، نعوذ باللہ اللہ ایسا نہ کرے میرے منہ میں خاک، عمران خان کو کیا قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے؟ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین کرام، عمران خان کے کل لانگ مارچ کا پہلا دن تھا، اور بہت ساری اسپیکولیشن تھی کہ عمران خان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، فوج تھی، ISI تھی، یہ تھا وہ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ملک کا DGISI جو ہے وہ بھارت کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کر سکتا، لیکن اس نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی، بلنڈر مارا، اور پھر آپ نے کل دیکھا کہ لاہور میں جس طرح سے عمران خان کو جو پیار ملا ہے، لاکھوں لوگ سڑکیں کے اوپر تھے، نہ فوج ہے، نہ ISI ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے خلاف ہر طرح کا محاذ کھلا ہوا ہے، لیکن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ جو پیار کیا ہے، اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ خطرناک حد تک جناب عوام کے اندر مقبول ہو رہا ہے۔ تو سب سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ طاقتور لوگ جو اپنی طاقت کے نشے میں دھت تھے اور کہتے تھے کہ پاکستان میں ہماری مرضی کے بغیر بھی پرندہ پر نہیں مار سکتا، ہم جب چاہیں گے حکومت بنائیں گے، جب چاہیں گے آپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، ہم جب چاہیں گے عوام کے اندر ایک پریس گانا ریلیز کر دیں گے، عوام کو پاگل بنا دیں گے، ہماری عوام جو ہے ہم سے پیار کرتی ہے۔ لیکن آج ناظرین کرام آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے وقت تبدیل ہو گیا ہے کہ عمران خان ایک اشارہ کرتا ہے، پوری قوم سڑکوں کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ یہ لانگ مارچ لاسٹ آور تھا، عمران خان کا آخری جوا ہے، تو اس لاسٹ آور کی آخری بال جو ہے وہ راولپنڈی کے اندر کھیلی جائے گی۔ عمران خان کے لانگ مارچ کی ٹانگیں ایسی کام پڑی ہیں۔ سب سے پہلی خبر آپ کو میں نے اسکرین کے اوپر دکھانی ہے، پھر میں آرمی چیف کی خبر پر چلا جاتا ہوں کہ وزیر اعظم نے لانگ مارچ سے متعلق وفاقی کابینہ کی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی لانگ مارچ کے دوران امن و امان برقرار رکھنے اور سیاسی بات چیت کرنے کے لیے بنائی گئی
गई है और इस कमेटी की सरबराही जो है वो राणा सनाउल्लाह करेंगे और ये 9 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। अगर लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक किसी ने बातचीत करनी है तो कमेटी से की जाएगी। कमेटी में इजाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, कमर जुबान कायरा, खालिद मकबूल, सदीक, मौलाना असद, मियाँ इफ्तिखार और मरियम औरंगजेब शामिल होंगी। और उस सब के बाद राणा सनाउल्लाह ने यह भी कहा है कि जनाब इमरान खान से हम इलेक्शन की बात भी कर सकते हैं, इलेक्शन की तारीख के ऊपर भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट हुकूमत ने बेताशा बार ये काम किया, लेकिन अब की बार इमरान खान के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। तो ये सब के बाद नाज़रीन किराम अब हालात जो है वो असम्बलियां तहलील करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान आखिरी ओवर अच्छा खेल रहे हैं अंडर प्रेशर। और शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर, मुबैना तौर पर जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक अगले 2 दिनों के अंदर अंदर नए आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला करने का, वो तैनात करने का फैसला कर लिया है कि जनाब वो अगले 2 दिनों में ये तकर्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मामला बड़ा सख्त है, क्योंकि ये समरी जो है, जो पैनल आता है वो GHQ भेजता है सेक्रेटरी डिफेंस को, और सेक्रेटरी डिफेंस से आगे प्राइम मिनिस्टर को ये समरी जो है वो अरसाल करता है। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि सेक्रेटरी डिफेंस और जनरल बाजवा जो है वो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और सेक्रेटरी डिफेंस जनरल बाजवा के समधी हैं। लेकिन अब यहाँ पर धरना जो है वो इनके लिए मुसीबत बन चुका है इंपॉर्टेंट हुकूमत के लिए, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो जनाब आप पिंडी के हल्कों में भी देखेंगे। लेकिन नए आर्मी चीफ ये समझ रहे हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ के नए आर्मी चीफ जो है वो सालसी का किरदार अदा करें। पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है क्रिटिकल हो चुकी है, पॉलिटिकल सिचुएशन टेंस हो चुकी है और इस वक्त मामलात हाथ से निकल रहे हैं, तो शहबाज शरीफ जो है वो किसी भी वक्त नए आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन जारी करवा सकते हैं। ये आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं। और उस सब के बाद अब ये नया आर्मी चीफ कौन हो सकता है अब तो ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि वक्त बहुत कम रह चुका है। लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के बेल्ट के अंदर बातें हो रही हैं, जो उनके सहाफ़ी बात कर रहे हैं, वो आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि उनका नाम उस पैनल के अंदर आता है या नहीं आता, क्योंकि 27 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट की तारीख सामने आ रही है। तो साहिल शमशाद मिर्जा भी हो सकते हैं पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ मुबैना तौर पर, लेकिन ये अभी तक इसका हतमी तौर पर जो है वो ऐलान नहीं हुआ। लेकिन इसके ऊपर जो बातें हो रही हैं वो मैं जरा आपके सामने रख रहा हूं। तो सबके बाद नाज़रीन किराम अब रात के जो इमरान खान को कत्ल करने की जो साजिशें पकड़ी गई हैं, अरशद शरीफ साहब को रास्ते से हटाया गया क्योंकि वो सच बोल रहे थे। वो जिस स्टोरीज के ऊपर बात कर रहे थे, मैंने उसके ऊपर तमाम तर चीजें आपके सामने रखी कि इस वजह से इनको कत्ल किया गया, ये कत्ल कर सकता है, ये सारा मामला है। आप मेरे पिछले व्लॉग्स देखें, मैंने उस पर बड़े आसानी से आपको बताया कि ये सारे मामला थे जिसकी वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान के अंदर बैठे लोगों ने उनको कत्ल करवाया है। लेकिन उस सब के बाद अब अरशद शरीफ के कत्ल के बाद कहा यह जा रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद इमरान खान उनका अगला हदफ है, इमरान खान उनका अगला निशाना है। अब इमरान खान को रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है कि एक शख्स जो है उसने रेड लाइन क्रॉस की थी हमारे खिलाफ, हमने उसको रास्ते से हटा दिया, तो दूसरा शख्स भी अब रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, हम तुम्हें भी रास्ते से हटा देंगे। तो इमरान खान से लोग गुजारिश कर रहे हैं कि जनाब आप अपनी जो सिक्योरिटी है वो उसको बूस्टअप कर लें, उसको एनहेंस कर लें और अपनी सिक्योरिटी पर आप रिस्क ना लें, और किसी तरह से भी आप रिस्क लेने के अब अभी पाकिस्तान जो है उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो इस सब के बाद नाज़रीन किराम अब जरा आ जाते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल पर सलमान इकबाल ने DCI की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, और उनका जो खत मंजर आम पर आया है उस पर कातिलों के नाम क्या सामने आ रहे जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक खबर आपके सामने रख देता हूं कि ISI, IB और FI की जो टीमें हैं वो जनाब कीनिया पहुंच चुकी हैं। वो क्राइम सीन का जायजा लेंगी जहां पर अरशद शरीफ को कत्ल किया गया था, और उस गाड़ी का जायजा लिया जाएगा, उस गाड़ी का मुआयना किया जाएगा जिस गाड़ी में अरशद शरीफ को कत्ल किया गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को देखा जाएगा। खुरम और वकार जो है वो अरशद शरीफ को वहां पर होस्ट कर रहे थे, उनसे तहकीकात होंगी, उनके राब्तों के हवाले से देखा जाएगा, क्योंकि वो इस वक्त कहां पर मौजूद है, उनको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जो है उनको भी वहां तक रसाई नहीं दी जा रही। तो ये मामला जो है वो बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। तो उस सब के बाद नाज़रीन किराम DCI SI और DCI SPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरशद शरीफ को कोई पाकिस्तान के अंदर खतरा नहीं था, लेकिन इमरान खान ने उनको भगवाया है पाकिस्तान से, इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो सलमान इकबाल है उनको भी तहकीकात के अंदर शामिल कर लेना चाहिए। और यही बात है कि अहमद मीर को जब गोलियां लगी थी उससे पहले कहा गया था अहमद मीर ने ये झूठी खबर
फैलाई को कोई गोली नहीं लगी। जब सच सामने आया तो कहा गया जी अहमद मीर को उसके अपने लोगों ने कत्ल करवाने की कोशिश की है, मीर शकील ने कत्ल करवाने की कोशिश की है। तो ये सारा मामला जो है वो अरशद शरीफ के साथ भी यही कुछ किया जा रहा है जो पहले होता रहा है। तो उस सब के बाद अब ये सारा मामला चला, लेकिन नाज़रीन किराम अब जो सलमान इकबाल है उन्होंने खामोशी तोड़ दी है। उन्होंने जो खत उन्होंने लिखा है यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स को, अगर आप स्क्रीन के ऊपर भी इसको देख सकते हैं, इस खत ने सब धज्जियां उड़ा के रखती हैं। अब इस खत में लिखा क्या हुआ है, किस किस के नाम लिखे हुए हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि अरशद शरीफ की जान को खतरा था। उन्होंने बार बार रियासत पाकिस्तान को खत लिखे, लेकिन उनकी मदद की बजाय उनको गिरफ्तार करने के वारंट जारी हुए। क्या इसके ऊपर DGI SPR तहकीकात करवाएंगे कि वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को बाहर जाने पर मजबूर किया। उन्होंने ये भी लिखा इस खत में कि इस वारंट के बाद कि हुकूमत उनकी मदद नहीं कर रही थी, उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां थी, उनको मारने की तैयारियां थी, तो उनको पाकिस्तान से मजबूरन जाना पड़ा था। तो वो कौन था जिसने दुबई पर भी ये प्रेशर डाला था कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से डिपोर्ट कर दिया जाए, और फिर कीनिया में बताया गया कि पाकिस्तानी जो नेटवर्क है वो उनके वहां पर पीछे लगा हुआ था, उनको कत्ल करने की तैयारियां कर रहा था। तो ये यहाँ पर बड़े सवालात खड़े हो गए थे। तो जब से उन्होंने कहा सलमान इकबाल साहब ने खत में कि जब से ये हुकूमत आई है अप्रैल 2022 से इन्होंने मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई और मुझे गोल्ड स्मगलर कहा, मुझे आर्म्स डीलर कहा, मुझे असला बेचने वाला कहा, और ये कैंपेन्स जो है वो मरियम नवाज से चलाई। FBR FIA पैमरा ने मुझ पर पॉलिटिकल हमले किए, और फिर ये कहा कि मेरी जान को भी खतरा है और मैं पिछले 6 माह से पाकिस्तान नहीं आ रहा। मरियम नवाज का नाम जो है उन्होंने साफ साफ रख दिया सामने। उनको उन्होंने कहा कि जनाब जो राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो DGI ISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूं, सलमान इकबाल ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इसकी तहकीकात करे कि किसने झूठी FIR करवाई थी अरशद शरीफ पर, जिसने अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया था। क्या ये FIR जो है वो इमरान खान ने करवाई थी? अब इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि कौम सब जानती है। और फिर साथ में उन्होंने कहा कि उन्होंने मुतालबा किया यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से कि इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, और मैं इस तहकीकात का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को सामने तफ्तीश करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके ऊपर इदारे नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन जो है उसकी तहकीकात करेगा, और मैं सबूत दूंगा कि किसने अरशद शरीफ को कत्ल किया है। तो ये मामला जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। उल्टा जो कुल्हाड़ी है वो अपने पाँव पर चला ली गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर। और अब जो खबर आ रही है कि अरशद शरीफ की लाश से गोली बरामद हुई है, कीनिया में जो पोस्टमार्टम हुआ था वो जनाब मशकूक हो रहा है। SOPs के जो होते हैं उसके तहत तो पोस्टमार्टम के बाद जिस्म से गोलियां जो हैं वो निकाल ली जाती हैं, उनको नहीं छोड़ा जाता, लेकिन गोली का फॉरेंसिक जांच करवाने का फैसला और वाकये में इस्तेमाल होने वाले हथियार की नौयत का तयन करने में भी उससे ये मदद मिल सकती है। और ये सारा मामला जो है वो किस जानिब जा रहा है, कीनिया की पुलिस, और ये सारा बड़ी अहम पेशरफ्त हो सकती है इस गोली से भी। एक गोली जो है वो कहाँ से चली, क्योंकि इसका फॉरेंसिक तो होगा। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, इस तरह लाजमी ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।